آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ الوداع ڈاکٹر منموہن سنگھ، سرکاری اعزاز کے ساتھ سابق وزیر اعظم کی آخری رسومات۔ 30 دسمبر کو تلنگانہ اسمبلی کا خصوصی اجلاس، ڈاکٹر منموہن سنگھ کو پیش کیا جائے گا خراج۔ 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے مجلس کی آل ان ون گائیڈ، صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کے ہاتھوں تقسیم۔ فارمولائی کار ریس معاملہ، کے ٹی آر کو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی نوٹس۔ اور تلنگانہ میں سردی کی شدید لہر، میدک میں اقل ترین درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس درج۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شمالی غزہ پٹی میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے حملے کے بعد کمال ادوان ہاسپٹل میں طبی سہولیات کی کارروائیاں روک دی گئی ہیں۔ اس حملے میں ہاسپٹل کے بڑے شعبے تباہ ہو گئے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہفتے کو یہ اطلاع دی۔ افغانستان اور پاکستان کے سرحدی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں 19 پاکستانی فوجی اور 3 افغان شہری مارے گئے۔ غیر ملکی میڈیا نے ہفتے کو یہ اطلاع دی۔ رپورٹس میں وزارت قومی دفاع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی سرحد سے متصل مشرقی افغانستان کے صوبوں میں شدید لڑائی ہوئی۔ جنوبی ارجنٹینا کے نیشنل پارک کا تقریباً 1450 ہیکٹر رقبہ جنگل میں لگی زبردست آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ پارک انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق آگ چہارشنبے کو پارک کے جنوبی حصے میں لگی اور اب یہ جھیل مارٹن کے شمالی سرے کی طرف بڑھ رہی ہے اور 2022 میں جنگل کی آگ سے پہلے ہی تباہ ہونے والے علاقے تک پہنچ گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حفاظتی وجوہات کی بنا پر محفوظ علاقے کے جنوبی اور وسطی حصوں میں پگڈنڈیوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی آج سرکاری اعزاز کے ساتھ آخری رسومات انجام دی گئیں۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا، بھوٹان کے بادشاہ جگے کھیر نامگیل وانگچک، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو، بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر جے پی نڈا اور کئی مرکزی وزراء، دہلی کی وزیر اعلیٰ آتشی، کانگریس صدر ملکارجن کھرگے، کانگریس پارلیمانی پارٹی کے قائد سونیا گاندھی، کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، تینوں افواج کے سربراہوں کے ساتھ کئی مرکزی وزراء، سفارتکاروں اور دیگر معززین نے ان کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ قبل ازیں ان کا جزتقاقی کانگریس ہیڈ کوارٹر میں آخری دیدار کے لیے رکھا گیا تھا، جہاں ان کے افراد خاندان کے ساتھ ساتھ کانگریس کے کئی سرکردہ لیڈرز نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور پارٹی کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو یادگار مقام فراہم نہ کرنا حکومت کے ذریعے ان کی توہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے مستحق تھے اور انہیں آخری رسومات کے لیے ایک یادگار مقام فراہم کرنا چاہیے تھا۔ راہل گاندھی نے کہا، حکومت نے آج نکم بودھ گھاٹ پر ان کی آخری رسومات ادا کر کے مادر ہند کے عظیم فرزند اور سکھ برادری کے پہلے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی مکمل توہین کی ہے۔ وہ ایک دہائی تک ہندوستان کے وزیر اعظم رہے۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی آخری رسومات کے لیے ایک الگ جگہ مختص نہ کرنے پر بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس کے درمیان سیاسی تنازع بڑھ گیا۔ کانگریس نے الزام لگایا کہ ہندوستان کے پہلے سکھ وزیر اعظم کی جان بوجھ کر توہین کی جا رہی ہے۔ نیز بی جے پی نے کہا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے اعزاز میں ایک یادگار تعمیر کی جائے گی اور اس کے لیے زمین کے حصول، ٹرسٹ کی تشکیل اور زمین کی منتقلی جیسے عمل کو مکمل کرنے میں وقت لگے گا۔
कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कल रात देर गए एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि आज सुबह कांग्रेस सदर ने वज़ीर आज़म को एक खत लिखकर तजवीज़ पेश की थी कि साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात ऐसी जगह अदा की जाए जहां इनकी विरासत का एहतराम करने के लिए एक यादगार तामीर की जा सके। देखो, स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारी मांग है ये कि मेमोरियल के लिए जगह देनी चाहिए सरकार को। अगर वाजपेयी साहब को जगह दे सकते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह क्यों नहीं मिल सकती। और इकलौते सिख थे और ऐसे व्यक्ति थे जिनको पूरा देश, चाहे ऑपोजिशन के लोग थे चाहे दुनिया में कोई और व्यक्ति था, वो सब मानते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी देन इस देश को है, दुनिया को है। दूसरी बात, जहां से वो उठकर देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिस परिवार से उठकर, ये अपने आप में एक मिसाल है। और आई थिंक ये आने वाली पीढ़ियां जब ये स्मारक बनेगा और जगह होगी, लोग आके देखेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उससे वो आने वाली हमारी पीढ़ियां प्रेरित होगी। तो क्या फर्क पड़ता है, सरकार को जगह देनी चाहिए। मेमोरियल चाहते हैं, स्वाभाविक है। एक मेमोरियल बनाने का एक प्रोसीजर भी होता है, एक तरीका भी होता है। लैंड एक्वायर करना पड़ता है, एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है। जब तक कि हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं तब तक संस्कार का काम, क्रीमेशन इत्यादि, क्योंकि यह इंतजार नहीं कर सकती है। यू प्रोसीड विद द सेम, आप वो आगे लेकर चलिए और हम मेमोरियल बनाने का काम आगे बढ़ाते हैं। अगले साल 2025 में जुमला 4 ग्रहण होंगे, जिनमें 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण शामिल हैं। इनमें से सिर्फ एक ग्रहण हिंदुस्तान में नजर आएगा। ये बात मध्य प्रदेश के उज्जैन में वाक़ जीवाजी स्पेस रिसर्च सेंटर के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताई। उन्होंने कहा कि 14 मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, लेकिन ये गहन दिन के वक्त होगा, इसलिए हिंदुस्तान में ये नजर नहीं आएगा। मेघालय पुलिस ने एक यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर असरअंदाज करने वाले आकाश सागर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसने क्रिसमस तकारीब के दौरान चर्च के अंदर राम सियाराम का गाना गाते हुए एक वीडियो बनाया, जिससे बड़े पैमाने पर गम और गुस्सा फैल गया और मजम्मत की गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब यूट्यूबर अपने दिलकश मनाजिर के लिए मशहूर मौलियांग गांव में चर्च में दाखिल हुआ। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाले वीडियो में सागर को एक मुकाम पर खड़ा दिखाया गया है, जो आमतौर पर ईसाई इबादत में तबलीग के लिए एक मुक़द्दस जगह है, और माइक्रोफोन पर राम सियाराम गा रहा है। इस वाक़े को रिकॉर्ड किया गया, इसके बाद मुतादिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया, जिससे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ और तंजीमों की जानिब से मजम्मत की गई है। We've come to file an FIR because just day before yesterday I came across one video, a reel made by one person in Mawlannong, and it is a very disturbing reel. It shows this person, I think he's a tourist. He's walking into the Church of Epiphany in Mawlannong. He films himself walking in. He films himself inside the church, walking to the altar area, taking the microphone and then shouting Jai Shri Ram, and also starting to sing all sorts of Hindu religious songs. And this was a premeditated criminal act, to go and desecrate a church in this manner. It is not only an insult, but it is actually an act that is trying to communalize. It's an insult to us because perhaps till now many of us are indifferent to the kind of communal hatred and division that is taking place in our country. Actually a communal act, criminal communal act that aims at divisiveness and hatred. And we hope that the police will actually ensure that this person is dragged back to Meghalaya so that investigation can happen, because he didn't do this alone. There was obviously चौंका देने वाले वाक़े में एक शख्स ने मुबैना तौर पर दानापुर एक्सप्रेस के एक डब्बे के नीचे छुपकर 290 किलोमीटर का सफ़र करते हुए अपनी जान को खतरे में डाला।
ये शख्स मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन के करीब मामूल की रूलिंग टेस्ट के दौरान पाया गया। इस आदमी का गैर मामूली सफर माली मुश्किलात की वजह है। ट्रेन के टिकट का किराया न होने की वजह से इसने ट्रेन के पहियों के नीचे सफर करने का खतरनाक फैसला किया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वाकये की वीडियो में ट्रेन के नीचे पाए जाने वाला शख्स मुमकिन तौर पर नशे में धुत दिखाई दे रहा था। ताहम इसकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई है। बादशाह इसे मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस ने तहवील में ले लिया। इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। चल इधर आ, चल जल्दी आ। कहाँ से जा रहा है तू? कहाँ से आ रहा है? बाहर आ, पहले निकल, बाहर निकल ना जल्दी। अंदर घुस के आ रहा हूँ। कौन सी गाड़ी? दानापुर एक्सप्रेस। ये दानापुर एक्सप्रेस में ये बंदा घुसा था नीचे ट्रॉली में। चल बाहर S4 में। चल इधर आ, इधर खड़ा हो। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने आवाम से ख्वाहिश की है कि मुबारक मौके पर किताबें तोहफे के तौर पर दी जाएं। उन्होंने हैदराबाद बुक फेयर में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किताबों में लामहदूद मालूमात होती हैं। उन्होंने कहा कि नौखवानदा अफराद के लिए ऑडियो बुक्स भी दस्तयाब करवाई गई हैं, जिससे इस्तेफादे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि किताबों को काफ़ी बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने इस फेयर पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस रिवायती बुक फेयर से किताबों को फ़रोग़ हासिल हो सकेगा। तेलंगाना असम्बली का खुसूसी इजलास 30 दिसंबर को सुबह 10 बजे मुनक़िद होगा। इस इजलास में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ख़राज-ए-अक़ीदत पेश किया जाएगा। असम्बली सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्युलु ने इस सिलसिले में तमाम अरकान असम्बली को इत्तला दी है। ये इजलास बतौर ख़ास ताज़ियती उमूर के लिए मुनक़िद किया जा रहा है ताकि आंजहानी वज़ीर-ए-आज़म को याद करते हुए इनकी खिदमात को ख़राज-ए-अक़ीदत पेश किया जा सके। आइंदा साल फरवरी में पेश होने वाले मरकजी बजट पर तेलंगाना हुकूमत काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए है। ज़राए के मुताबिक इन तजावीज़ में हैदराबाद के अतराफ तामीर होने वाली रीजनल रिंग रोड, हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के प्रोजेक्ट की अंजामदही, मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोग्राम के साथ साथ हैदराबाद और रियासत के दीगर शहरों में बुनियादी सहूलियतों की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत ने मरकज़ से दरख्वास्त की है। बताया गया है कि इस खुसूस में क़ब्ल-अज़ ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी समेत डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मुख्तलिफ महकमों के वज़रा ने दिल्ली में मरकज़ी वज़रा से नुमाइंदगी करते हुए बजट तजावीज़ को पेश किया है। तेलंगाना के वज़ीर टी नागेश्वर राव ने कहा कि काश्त होने वाली ज़मीनों पर ही रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। इसके लिए सेटेलाइट तस्वीर हासिल की जाएंगी। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर ज़राअत ने संक्रांति से शुरू होने वाले किसानों के रैतु भरोसा स्कीम की अमलावरी का आला अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए नागेश्वर राव ने कहा कि हुकूमत सिर्फ ऐसी ज़मीनों को माली इमदाद फराहम करने का इरादा रखती है जिस पर काश्त की जा रही है। हैदराबाद में फार्मूला ई कार रेस के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बीआरएस के कारगुजार सदर और साबिक वजीर केटीआर को नोटिस जारी की है। ईडी ने उन्हें 7 जनवरी को तहकीकात के लिए पेश होने की हिदायत दी। इस केस में सीनियर आईएएस ऑफिसर अरविंद कुमार और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इन्हें 2 और 3 जनवरी को तहकीकात के लिए तलब किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने तेलंगाना के जिले करीमनगर के शंकरपट्टनम के डिप्टी तहसीलदार को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तहसीलदार की शनाख्त मल्लेशम के तौर पर की गई है। उसने गैर ज़रई अराजियात के असेसमेंट से मुताल्लिक़ एक्ट नाला के तहत अराजी के ज़ुमरे को तब्दील करने के लिए एक शख्स से 6,000 रुपये रिश्वत तलब और कबूल की थी। इस सिलसिले में शिकायत कुनिंदा ACB से रुजू हुआ, जिसने ये कार्रवाई की। कमिश्नर हैड्रा रंगनाथ ने बताया कि हैड्रा ने अब तक 200 एकड़ सरकारी ज़मीन को कब्ज़ों से बचाया है। हफ्ते के रोज़ मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैड्रा की सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। रंगनाथ ने कहा कि हैड्रा की कार्रवाइयों की बदौलत गैर कानूनी तामीरात, बफर जोन्स और FTL के बारे में अवाम में शऊर बेदारी पैदा हुई है।
उन्होंने मजीद कहा कि प्लॉट्स और फ्लैट्स खरीदने वाले लोग मुहतात हो गए हैं। रंगनाथ के मुताबिक हाइड्रा ने अब तक 8 तालाबों और 12 पार्क्स की हिफाजत की है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तालाबों की हदूद और बफर जोन्स का तयन किया जा रहा है। ఇది మనకి గతంలో చేసినటువంటి స్టడీస్ ద్వారా అండ్ ప్లస్ మనకి మెయిన్ గా శాటిలైట్ ఇమేజెస్ ద్వారా కానీ లేకపోతే టోపో షీట్స్ ద్వారా కానీ కూడా గుర్తించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనమాట. అండ్ దీంతో పాటు చూస్తే కనుక ఇప్పటికి దాదాపు 5,000-8,000 కంప్లైంట్స్ దాకా మాకు రావటం జరిగింది. వీటిలో చాలా వరకు కూడా మనకి ఇది ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఇన్ ఇది FTL గురించి కానీ. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने SSC के इम्तिहानात की तैयारी करने वाले उर्दू मीडियम के तलबा में 8,000 सालार मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स तकसीम किए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में तलबा में ये किताबें तकसीम की। इस इक़दाम का मकसद मुस्लिम तलबा में तालीम छोड़ने की शरह को कम करना और इन्हें हुकूमत में ओहदों तक पहुँचने में मदद करना है। इस साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दारुस्सलाम ट्रस्ट की जानिब से मजलिस शरीफ एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ऑल इन वन जो SSC के तलबा और तालिबात को दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 8,000 तलबा और तालिबात को ऑल इन वन ये दिया जाएगा। इसमें शहर हैदराबाद के 2,000 तलबा और तालिबात जो गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस पढ़ते हैं उनको दिया जाएगा और बाकी 6,000 तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में इसकी तकसीम अमल में लाई जाएगी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम हजरात का जो इस ट्रस्ट में अपना दिया देते हैं और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो तलबा और तालिबात को ये ऑलिवर मिल रहा है वो इसका सही इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो अच्छे नंबरात के साथ SSC के इम्तिहान में इंशाअल्लाह अल्लाह उनको कामयाबी से हमकिनार करेगा। ये हमारी दुआ भी है, हमारी तमन्ना भी है। मकसद ये ऑल इन वन गाइड और ये स्कूल बैग का जो सालाना फंक्शन होता है इसका एक ही मकसद है कि गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल्स में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को तालीम की तरफ राग़िब किया जाए, मुसलमानों में जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम किया जाए और हमारी ख़ास कोशिश यही है कि हमारी बेटियां अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें ताकि वो अपनी ज़िंदगी के ख्वाबों को पूरा कर सकें। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कई उर्दू स्कूल्स में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात आगे जाकर इंशाअल्लाह इंटर में भी वो BPC और MPC लेकर नीट में भी क्वालिफाई होते हैं, MSET में भी क्वालिफाई होते हैं। तो ये कोशिश मरहूम क़ायद सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा ने अपनी ज़िंदगी में शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसको कामयाबी के साथ आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इस ऑल इन वन गाइड का सही इस्तेमाल करिए और अच्छे नंबरात से SSC में कामयाबी हासिल करने के बाद आप इंटर में अपना एडमिशन लीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें, आप मुल्क को मजबूत कर सकें और मुसलमानों को भी मजबूती अता कर सकें। शुक्रिया बहुत। शौहर की तीसरी शादी की इत्तला पर दूसरी बीवी ने इसके घर के सामने एहतजाज किया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के कनाल गांव की रहने वाली नागल ज्योति से देवेंद्र नामी नौजवान ने 5 साल कबल शादी की थी। ज्योति उस नौजवान की दूसरी बीवी थी। ताहम जब ज्योति को पता चला कि इसका शौहर तीसरी शादी करने जा रहा है तो उसने शौहर के घर के सामने धरना दिया और इंसाफ का मुतालबा किया। भुवनगिर जिले में पेश आए सड़क हादसे में खातून और उसका 3 साला बेटा हलाक हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह भुवनगिर बाईपास के करीब उस वक्त पेश आया जब यादगिरी गुट्टा की मंदिर से वापसी के दौरान बाइक चलाने वाले शौहर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इस कदर शदीद था कि पवानी नामी खातून और इसका 3 साला बेटा जिसकी शिनाख्त कन्हैया के तौर पर की गई है मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि खातून का शौहर जगन और बेटी सात्विका जख्मी बताए गए हैं। इन तमाम का ताल्लुक हैदराबाद के चंपापेट से है।
शहर हैदराबाद के ऊपर नल्ला चिरू इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने हालत नशा में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम चलाई। कल रात चलाई गई इस खुसूसी मुहिम के दौरान तकरीबन 15 गाड़ी सवारों को ट्रैफिक पुलिस ने रोककर उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया। इस मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कहा कि नशे की हालत में गाड़ियां नहीं चलाना चाहिए क्योंकि हमारे अरकान खानदान हमारा घर पर इंतजार करते हैं। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन लिमिट्स లో స్పెషల్ డ్రైవ్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ మీద చేయబడుతుంది। నల్ల చెరువు గట్ట పైన సుమారు 7 గంటలకు మొదలుపెట్టాము। ఇప్పటి వరకు అయితే మాకు 15 వెహికల్స్ దొరికినాయి। ఇంకొక పావు గంట 20 నిమిషాల్లో క్లోజ్ అవుతుంది। బట్ ఈ వేదికగా డ్రైవ్ దయచేసి తాగండి, ఇంట్లోనే తాగండి, వీధిలోకి రోడ్లపైనకి గల్లీలోకి తిరగకండి। మీకు ప్రమాదం, మీ వల్ల ఎదుటి మనిషి కూడా ప్రమాదం। ప్రతిరోజు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో అరగంట గంట చేస్తాము, ఒక 5-6 దొరుకుతాయి। ఇవాళ స్పెషల్ డ్రైవ్లో చాలా కేసెస్ దొరికినాయి। ప్రజలు ఇంట్లో మీ ఫ్యామిలీస్ మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు। మీరందరూ క్షేమంగా ఉంటేనే ఇంట్లో క్షేమంగా ఉంటారు। కాబట్టి డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, కార్ కానీ 2 వీలర్ కానీ, దయచేసి తాగి నడపకండి। తాగి నడిపి ఉప్పల్ రోడ్స్లోకి అసలు రాకండి। మన రోడ్స్ అసలే స్టీప్గా ఉన్నాయి, కర్వ్స్ ఉన్నాయి, ఎంతోమందికి ఇష్యూస్ అయితే ఎంతోమందికి ప్రాబ్లం అవుతుంది। తర్వాత హెల్మెట్స్ ధరించండి। తాగి మీరు పడిపోయినా కూడా మీరు బతకాలి అంటే హెల్మెట్స్ అవసరం। సో హెల్మెట్స్ పెట్టుకోండి। రాంగ్ రూట్లో తాగి రాకండి, అది కూడా ప్రమాదమే। చాలా వైలేషన్స్ ఉన్నాయి, చాలా వైలేషన్స్ చేస్తున్నారు। నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి అన్న ప్రతి ఒక్కరు రెజల్యూషన్ తీసుకోండి, తాగి బండి నడపకూడదు, బండి నడపము అని ఒక రెజల్యూషన్ తీసుకోండి। మీ వల్ల మేము సేఫ్, మా వల్ల మీరు సేఫ్, మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చాలా ప్రశాంతంగా ఉండాలి। వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇంటికి రిటర్న్ రానంత వరకు అందరూ భయపడతారు, అందరూ బాధపడతారు। ఇంటికి వెళ్తేనే కదా మీరు మీ ఫ్యామిలీతో హ్యాపీగా ఉంటారు। సో మీరు మీ ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను। దయచేసి తాగి నడపకండి। अपना खर्च अदा न कर पाने और बैंक ओहदेदारों के बढ़ते हुए दबाव के सबब हैदराबाद के बोयनपल्ली में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। 35 साल एम नरसिम्हा, जो वनपर्ती का रहने वाला है, अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ चंद साल कबल शहर मुंतकिल हुआ और ओल्ड बोयनपल्ली में किराए के मकान में मुकीम था। वो नारियल पानी का कारोबार किया करता था। पुलिस ने बताया कि नरसिम्हा ने अपने गाँव में अपने मकान की तज़ीनों और आरइश और कारोबार को तरक्की देने के लिए गदवाल के खानगी बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया था। ताहम अपनी मामूली कमाई की वजह से वक्त पर EMI अदा करने में नाकाम रहा। हाल ही में बैंक के हुक्काम ने उनके गांव में वाक़ उनके घर और हैदराबाद में उनकी दुकान पर पहुंचकर उन्हें जब्त करने का इंतबाह दिया था। इससे दिलबर्दाश्ता होकर इस शख्स ने जुमा को अपने घर वालों की अदम मौजूदगी में फांसी ले ली। रियासत तेलंगाना में एक मरतबा फिर सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। तेलंगाना के कई मकामात पर अक़ल तरीन दर्ज हरारत 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुमाली और वस्ती तेलंगाना में सर्दी की लहर ज़ायद दर्ज की गई। महकमा मौसमियात ने ये बात बताई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 दिनों से सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया। मुत्तहिदा ज़िले मेदक में दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई। संगारेड्डी ज़िले के कोहिर में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 13.1 डिग्री सेल्सियस और मेदक ज़िले के शिवमपेट में 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात के हुक्काम के मुताबिक मेदक, संगारेड्डी और सिद्दीपेट अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रियासत के कई मकामात पर कोहर की घनी चादर भी देखी जा रही है। अलविदा डॉक्टर मनमोहन सिंह, सरकारी एजाज के साथ साबिक वज़ीर आज़म की आखिरी रसूमात। 30 दिसंबर को तेलंगाना असम्बली का खुसूसी इजलास, डॉक्टर मनमोहन सिंह को पेश किया जाएगा खराज। 10वीं जमात के तुलबा के लिए मजलिस की ऑल इन वन गाइड, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों तकसीम। फार्मूला ई कार रेस मामला, KTR को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस। और तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर, मेदक में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।